does not manifest where there is no need of him. परमेश्वर कभी भी अपने आप को उस जगह पर प्रकट नहीं करता जहां उसकी आवश्यकता ना हो। If you display you don't need God, यदि आप ये दिखाते हो कि प्रभु मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, nobody says it, कोई कहता नहीं है मुंह से, but we display it. लेकिन अपने हाव भाव से दिखाते हैं We उसे, display it by depending on something else. किसी और बात पर निर्भर होने के द्वारा दिखाते हैं। We depend on the resource rather than depend on the source. हम संसाधनों पर निर्भर रहते हैं बजाय उसके जो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। From today onwards, hosting the Holy Spirit is not just once a month, but we're going to believe God to host the Holy Spirit 24/7 like the way we are breathing. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का स्वागत करना जो है सिर्फ रविवार के दिन ही नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह हम श्वास लेते हैं उसी तरह हर एक दिन हम उसे उत्सव मनाएंगे। You don't need more breath only when you're running. जब आप दौड़ रहे हो केवल उसी वक्त आपको ज्यादा श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। Even when you're sleeping, you need oxygen. यहाँ तक कि जब आप सो रहे हो तब भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। Let us learn to fellowship with the Holy Spirit is by hosting Him. और आइए हम सीखें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ बने रहने के द्वारा उसको हम स्वागत करते रहे अपने जीवन में हमेशा। How we can do it? कैसे हम कर सकते हैं? Let's learn to host the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को अपने अंदर बनाए रखना, उसको स्वागत करना कैसे हम सीखें? Book of Mark, chapter 10 and verse 15 says, Truly I tell to you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. what is Jesus saying? और यीशु क्या कह रहा है? Unless and until you receive the kingdom of God like these little children. Kingdom of God is the presence of the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। More the presence of the Holy Spirit, more the kingdom of God in our life. Kingdom of God is 30-fold, 60-fold, 100-fold. How will the presence of Holy Spirit increase? You pray, आप प्रार्थना करिए, you fast, आप उपवास करिए you speak the right words, और सही शब्दों को कहिए, you do the right thing, you desire Him. आप उसके और लालसा कीजिए। Let me explain to you. मैं आपको समझाता हूँ इसे। Do you have some people whom you cannot forgive? क्या कोई ऐसा है जिसको आप क्षमा नहीं कर सकते? Don't point out to me. I'm just saying hello. There are people whom you're not able to forgive. और कुछ ऐसे लोग होंगे आपके जीवन में जिसे आप क्षमा कर ही नहीं पाते हो। So what do? आप क्या करते हो? Holy Spirit, पवित्र आत्मा, give me your love. मुझे आपका प्यार Give me दीजिए, your wisdom. आपकी बुद्धि दीजिए, Give me your grace. आपकी अनुग्रह दीजिए, So I can love them. ताकि मैं उनसे भी प्यार कर सकूं। That's how Holy Spirit will increase. और इसी तरीके से पवित्र आत्मा बढ़ती है। How do you display that you have a need of Him? कैसे दर्शाते हो आप God, I'm not able to forgive. कि परमेश्वर मैं माफ नहीं कर पा रहा, I'm not able to pray. मैं प्रार्थना नहीं कर पा I'm रहा, not able to read the word. मैं वचनों को नहीं पढ़ पा I'm रहा, not able to obey the word. मैं वचनों का पालन नहीं कर पा रहा। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा hey, you want the Holy Spirit? कि सुनो, अगर तुम्हें पवित्र आत्मा You चाहिए, want the power of God? तुम्हें परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ You चाहिए, want the power of God? परमेश्वर का सामर्थ चाहिए तुम्हें, Then तो सुनो, you need to be like a little child. तो तुम्हें छोटे बच्चे की तरह बनना जरूरी है। I'm not talking about childishness, child. मैं बचपने के जैसा हरकत करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बच्चों के समान बनने के लिए कह रहा हूँ। What is child? और बच्चा क्या है? Child believes anything. बच्चा जो होता है वो हर एक बात पे विश्वास करता है, Child will receive anything. वो हर एक बातों को पा लेता है। Child just depends on you. और बच्चा जो है वो निर्भर रहता है आप पर। You and I, आप और मैं, we need to be like little children. I know Jesus died for me. मैं जानता हूँ कि यीशु मेरे लिए मरा। I know my name is written in the book of life. मैं जानता हूँ कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में I लिखा know है। the scriptures. मुझे वचन पता है I've been in the kingdom for the last 40 years. और मैं जो पिछले 40 साल से जो है Oh, I know this. मुझे ये पता है, I know that. मैं वो जानता हूँ। We know the kingdom, हम राज्य को जानते हैं, but we're not childlike. लेकिन हम बच्चे के समान नहीं हैं। What is childlike? बच्चे के समान होने का मतलब क्या है? You depend. आप निर्भर रहते हो, You believe. आप विश्वास करते हो I know it all. कि मुझे तो सब पता है। If somebody quotes the scripture before he finishes, you finish the scripture. और यदि कोई वचन को लेकर के बोलता है, इसके पहले उसका पढ़ के खत्म हो, आप उसको बोल के खत्म कर देते हो। When he says 11, 13, Mark 11, you already know what is the scripture. और जब वो कहता है कि मरकुस 11, आपको पहले से ही पता रहता है कि वचन में क्या लिखा We है। are know-it-all people. और हम ऐसे लोग होते हैं जिनको सब पता है, Know-it-all will never give you the power of the kingdom of God. और सब कुछ पता है जैसा स्वभाव रखने वाले परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। God's power is only manifested when we are
childlike faith. परमेश्वर का सामर्थ तभी वो कार्य करता है जब उस बालक के समान हमारे अंदर विश्वास होगा। We can only host the Holy Spirit when we are childlike. Fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की जो सहभागिता करना है is not for time. It is 24/7 like oxygen. वो समय पर निर्धारित नहीं रहती है, लेकिन वो ऑक्सीजन के समान 24 घंटे आपके संग होनी चाहिए। Kingdom of God with power. परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ। Whenever kingdom of God means it is presence of the Holy Spirit. और जहाँ कहीं भी परमेश्वर का राज्य है यानी कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वहाँ पे Holy Spirit is the Lord. पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। Holy Spirit is life. पवित्र आत्मा वो जीवन है Holy Spirit is the giver. और पवित्र आत्मा देने वाला है। Holy Spirit is the healer. पवित्र आत्मा चंगाई देने वाला Holy है। Spirit is the provider. पवित्र आत्मा मुहैया करता है। Holy Spirit is deliverer. पवित्र आत्मा छुटकारा देता है Holy Spirit is the miracle worker. और पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला है Holy Spirit is altogether lovely. और पवित्र आत्मा जो है सर्वप्रिय है। Freely you receive, मुफ्त में आपने पाया है, freely you give. मुफ्त में आप उसे दें। Today, I declare this prophetically. और भविष्यवाणी के तौर पे मैं घोषित करता There's a हूँ new season come in this church. कि इस कलीसिया में एक नया मौसम आ रहा है, The season of the Holy Spirit. एक ऐसा मौसम जो पवित्र आत्मा का मौसम है। And this is the prophetic word. और ये भविष्यवाणी का वचन है। Walking in the liberty और स्वतंत्रता में चलना is absolute freedom in the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा में संपूर्ण आजादी है। What is the new season? नया मौसम क्या है Supernatural is going to be natural. कि जो अलौकिक बात है वो स्वाभाविक बात बन जाएगी आपके लिए। Every other company is going bad, only your company is going higher because you are there. Come on, lift your hands. अपने हाथों को उठाएं। Every other places there's gadbad, but your place there's such order in Jesus' name. और हर जगहों पर जो है गड़बड़ी होगी, लेकिन आप जिस स्थान पे रहोगे वहाँ पे शिस्तता रहेगी। The more the older you get, no more idhar dukta, udhar dukta. Wherever you go, you will walk in, come on, victory. और जितना ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही आपको दर्द कहीं भी नहीं रहेगा, लेकिन आप विजय में जियोगे Full of energy, और सामर्थ्य से भरकर full of life, और जीवन से भरा full हुआ of josh. और जोश से भरा Come हुआ। on, somebody say amen to that. कोई आमीन कहे। When you walk with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे you don't need somebody to pat your back. तो किसी को आपकी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। You walk in liberty. आप स्वतंत्रता में चलते हो Absolute freedom in the Holy Spirit. और संपूर्ण आजादी पवित्र आत्मा में। You're growing from faith to faith, from glory to glory. आप जो है विश्वास पर विश्वास और महिमा से महिमा में बढ़ते जाओगे। The choice is yours. चुनाव लेकिन आपका है। Kingdom of God is Holy Spirit manifesting. और परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकट होना। Kingdom of God has to grow. परमेश्वर के राज्य को बढ़ते देना है। You need to see that growth in your life. अपने जीवन में उस बढ़त को देखना है आपको Where the Holy Spirit is, कि जहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा है there's liberty. वहाँ पे स्वतंत्रता है। One sacrifice of Jesus कि यीशु मसीह के एक बलिदान ने destroyed और नाश कर दिया the works of the enemy. शत्रु के सारे कामों को। Look at me, look at me, look at me. मुझे देखें आप, What did he destroy? उसने क्या नाश किया? Number one, पहली बात, the liberty means penalty of sin is paid for. The penalty of sin, और पाप की जो कीमत थी उसने चुका दी है। the power of sin, और जो सामर्थ था पाप का and the presence of sin. और पाप की जो उपस्थिति थी। Liberty doesn't mean you statue hold it. और लिबर्टी यानी स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि वो पुतला जो अपने हाथ में मशाल लिए हुए है। I walk in liberty. और मैं स्वतंत्रता में चलता हूँ What is liberty? Penalty of sin paid. कि पाप की जो कीमत थी वो चुका दी गई Power of sin is not there. और पाप का जो सामर्थ वो वहाँ पे नहीं है। No more lusting. और अधिक वासना नहीं No more anger. और अधिक जो है गुस्सा नहीं। Come on, put your hand on your mind. अपने जो है माथे पे अपने हाथ को रखो। Lord Jesus, प्रभु यीशु, give us the childlike faith. उस बच्चे के समान विश्वास हमें दे प्रभु। Give us the innocence of a child. वो मासूमियत दे जैसे बच्चों में होती है। Give us the passion of the child. उन बच्चों के समान वो जुनून हम में दे प्रभु। So that we can host the Holy Spirit. ताकि तेरी पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर बनाए रखें। So that we can receive the kingdom of God. Holy Spirit, I depend on you. पवित्र आत्मा मैं आप पर निर्भर होता Not हूँ। on my gifting. मेरे तोहफे पे नहीं, Not on my strength. मेरे बल पर नहीं, Not on my wealth, money. मेरी धन संपदा पर नहीं प्रभु, I depend on you. लेकिन मैं आप पर निर्भर होता हूँ। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। What did not happen in 25 years? कि जो बीते 25 सालों में नहीं हुआ,
is happening in 2025. वो इस नए साल 2025 में आप मेरे लिए Come on, करोगे। lift your hand. I receive that word. और कहो प्रभु पा लेता हूँ मैं इस वचन को, That miracle, वो चमत्कार, that healing. वो चंगाई। Open your mouth अपने मुंह को खोलें and say, God, what did not happen in 25 years, it'll happen for me in 2025. और कहें कि प्रभु जो बीते 25 साल में नहीं हुआ इस नए साल 2025 Come में on, मेरे lift your लिए hand and say, होगा। Lord, it's going to happen in my life, in जीवन my में, home, मेरे घर में, in my family, मेरे परिवार in my में, finances, मेरे आर्थिक in my क्षेत्र में, marriage, मेरे वैवाहिक in जीवन my में, children, मेरे बच्चों in my में, grandchildren, मेरे नाती in पोतों my में, coming generation, मेरे आने वाली पीढ़ी में for 10,000 generations. और 10,000 Oh, पीढ़ियों God, में it's going to प्रभु, happen in my life.